is not gathering, but J gets. Okay. Okay, clear? So, वो मतलब पहला वाला पहले दो टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि एक छोटा सा टॉपिक था लास्ट क्लास. नाउ वी मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक विस्कोसिटी. ठीक है. So what is viscosity? Viscosity अगर तुम उसको कुछ बोले तो विस्कोसिटी इज बेसिकली इसके बहुत सारे नाम हैं. Somewhere it is known as fugitive elasticity. ठीक है. दूसरे कारण है जब सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है ना तो बोलने में आसान नहीं होता. फिर आई गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, वो भी एक कारण है. सो फ्यूजिटिव इलास्टिसिटी इसका एक नाम है. दूसरा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल फ्रिक्शन. Secondly is also related to something called momentum transport. तीनों नाम है उसके. फ्यूजिटिव इलास्टिसिटी, इंटरनल फ्रिक्शन एंड मोमेंटम ट्रांसपोर्ट. इलास्टिसिटी इन सॉलिड्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? इलास्टिसिटी, हाँ, इट इज द स्ट्रॉन्ग हाउ बॉन्ड्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड टू ईच अदर. तुम लोगों ने लीना जोन्स पोटेंशियल पढ़ा है? सॉलिड स्टेट में लीना जोन्स ठीक है. इसको 612 पोटेंशियल. Basically, when two atoms approach each other, how is the potential like? You all देखा है ना पहले? So initially there is an attractive force followed by a repulsive force. Attractive force क्या है? Initially इन दोनों के बीच, दो एटम्स के बीच there is an attractive force. Then after some time there is a repulsive force. कारण क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स होने का कारण क्या है? दो एटम दूर से आ रहे हैं. Why should be there an attractive force first of all? Attractive force is not related to repulsive force. No, why will they attract each other? Two atoms coming. What how to? Because they are Charged in what way? Atom का structure क्या होता है? Atom में positive charge कहाँ रहता है, negative charge कहाँ रहता है? Cloud. Yes. So if you look at the structure of an atom, ठीक है, एक एटम को कंसीडर करो. उसके सेंटर में क्या रहता है? क्या रखता है?
positive charge nuclear. Positive charge, right? We have the protons. Protons, right? So the center consists mainly of protons. So P plus proton, or rather I should call it as H plus. P plus is also equivalent to H plus. Or neutrons. ठीक है? है ना? So that is why it's positive. How they are bound together? यहाँ पे प्रोटॉन में रिपल्शन क्यों नहीं होता? हाँ? चेंज होता रहता है कैसे? क्या चेंज होता रहता है? You're right. हाँ, there is something that is changing. What is changing between them? Now, how many कितने टाइप के फोर्स होते हैं पता है? ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है. There are four forces of nature here in Bhagavad. So let me go to another. Forces of nature. कितने टाइप के फोर्स है नेचर में? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. वेरी गुड. ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स में लोग जानते हो. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी जानते हो. Strong force is the reason that the nucleons, so nucleons, nucleons means protons and neutrons. They are bound together each other. So कैसे bound होता है? They now suppose ऐसे बोल सकता हूँ. If you arrange few number of football players, ठीक है, और तुमको कहा जाए कि you have to somehow make them locate in a certain region. तुमको कहा गया कि इस ग्राउंड के अंदर फुटबॉल प्लेयर्स इस ग्राउंड से भाग के ना जाए, इसलिए तुमको एक तरकीब करना है. तुमको ये कहा जाता है कि फुटबॉल you make them the football to exchange among themselves. मतलब ऐसे गोल करके खड़े हो गए और exchange हो रहा है. So something is making them glued together due to the exchange of that. So it is an analogy to something called gluons. The football में बोल रहा था that is being exchanged. That is an analogous to gluons. और उसका जो सबडिविजन है उसको बोलते हैं क्वार्ट्स. So that is how. I will not go into the details right now. अगर मौका मिले in higher classes I will discuss about all these things. So यहाँ पे हम एटम्स के बारे में बात करते हैं. एटम्स में this is the positive charge due to the presence of protons, and the protons do not interact with each other because यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात नहीं होती. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन वाला जो केस है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन. तो यहाँ पे दे आर नॉट there is no electromagnetic interaction, there is strong force that is causing them together. और इसके साइड में जो है ये वाला जो रीजन है ये वाला रीजन है. This is the electron cloud. पता है ना electron cloud?
क्लाउड क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बनाने वाला है। So it's cloud of what? क्लाउड का यू आर राइट, बिकॉज हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, तो क्लाउड को बोलते हैं। क्लाउड इज क्लाउड ऑफ समथिंग। किस चीज का क्लाउड है? चार्ज का क्लाउड है? नहीं, इट्स ए क्लाउड ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू समथिंग कॉल्ड साई स्क्वायर। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है ना, तो आई जस्ट गो, तो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स राइट नाउ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था बूस्टिंग नॉलेज। साई स्क्वायर, वेयर साई is also called the wave function. So it's a quantum mechanics wave function. क्वांटम मैकेनिक्स है ना, इसमें लॉरेंस सर्किट का एक क्लास है, हम लोग डिस्कस करें। साई इज द वेव फंक्शन, ठीक है। तो एक इक्वेशन है जो कि ये बोलता है कि हाउ द साई विल बिहेव। दैट इज इक्वेशन का हम लोग लिखते हैं ऐसे, h साई इज इक्वल टू साई, और यहाँ पे एक ऐसा सिंबल देते हैं टक टक। इस इक्वेशन का नाम है, जानते हो क्या बोलते हैं इसको? एनी आइडिया? Schrödinger's equation. This is called Schrödinger's equation. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग बेसिकली y और x का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बेसिकली वो क्या बोलता है, हाउ y इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मैकेनिक्स। हाँ, इसी तरह से ये बोलते हैं हाउ द साई इज मूविंग। अच्छा, ये जो मैंने ये वाले जो साइंस ऊपर दिए हैं ना, ये वाले साइंस इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। सो देयर इज एन h, इसको बोलते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। हैमिल्टनियन ऑपरेटर मतलब इट इज सिंपली इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m प्लस v, और दिस इज एनर्जी ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स में रियल फिजिकल क्वांटिटीज ऑपरेटर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। तब हम रियल स्पेस में बात नहीं करते, हम लोग हिल्बर्ट स्पेस में बात करते हैं। सो वेयर भी हम लोग बोल रहे थे कि why the atoms will attract each other. Atoms will attract each other because there is a positive core and there is an electron cloud. So एक एटम का पॉजिटिव nucleus will be attracted by the electron cloud of the other, and the same will happen for the other case. दोनों के केस में पॉजिटिव, this is how electrons will attract each other. Okay. अच्छा, so this gives rise to elasticity, मतलब how strongly the bond is. अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाता है, this equilibrium space, equilibrium. यहाँ पे the electron is always in the state of vibration. हाँ, और this is sometimes this region जो RO है, इसको हम bond length बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ, तो जितना स्ट्रॉन्ग मेरा होगा उतना मेरी इलास्टिक होगा उतना स्ट्रॉन्ग। अच्छा,
दिस विस्कोसिटी, ये तो मैंने सॉलिड के केस में हो गया। लिक्विड के केस में क्या होता है, हम लोग उसको फ्यूजिटिव इलास्टिसिटी बोल रहे हैं। फ्यूजिटिव मतलब भाग जाता है ना, फ्यूजिटिव्स। इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो कोहेसिव फोर्स से अट्रैक्ट तो होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम दे ब्रेक अप। ठीक है, सो देयर इज अ रिलैक्सेशन टाइम एसोसिएटेड विद दैट। डे स्कॉलर्स कितने लोग हो तुम लोग अभी यहाँ पर? हाउ मेनी डे स्कॉलर्स? मैक्सिमम हॉस्टलर्स हो गए 7 डे स्कॉलर्स, मैक्सिमम हॉस्टलर्स। ठीक है, तो दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा अच्छा ठीक। तो इसका मतलब यू आर गेटिंग द आइडिया कि they are bound to each other, but they are not bound for a certain for longevity, मतलब they टूट जाते हैं। That is why they are in a flow state. Because of this fugitive nature, they are in a flow state, but there is some internal attraction between them. इसलिए इसको fugitive elasticity बोलते हैं। This is one way of explaining the viscosity. दूसरा तरीके से एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं कि they are also called कॉज इंटरनल फ्रिक्शन। मतलब एक लिक्विड लेयर अगर है ऐसे, सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, वैसे कंपैरिजन क्या है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पे लिक्विड फ्लोज, सॉलिड इज इंटैक्ट। So this is one lesson. There are atoms. They are in a constant state of vibration. That means if the temperature, is greater than 0 Kelvin, जो कि absolute temperature है, even if it is greater than 0 Kelvin, they will always vibrate. ठीक है, and they will vibrate based upon temperature, जिसको हम लोग बोलते हैं half kT in one dimension. वाइब्रेट तो तीनों डायमेंशन में कर सकता है ना, ऐसे भी x, y एंड z तीनों डायमेंशन में वाइब्रेट कर सकता है। लेकिन अगर एक डायमेंशन का वाइब्रेशन हम लोग फाइंड आउट एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट वाइब्रेशन, देन इट इज हाफ kT, एंड इफ यू टेक द 3 डायमेंशन कितना होगा, into 3 by 2 kT। ठीक है, सो 3 by 2 kT, दूसरी डायमेंशन। ये जो वैल्यूज है इसको हम बोलते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कॉल्ड इक्विपार्टीशन ऑफ so it is constant to the value. But we cannot say that for the liquid.
लिक्विड में लेट अस टेक द पोजीशन ऑफ एनर्जी. लिक्विड में the material is always flowing with a certain velocity. तो यहाँ पे वाइब्रेशन की तो कोई बात आ नहीं जाती. हालांकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. We consider that it is consisting of small molecules. Okay, there are small molecules, but they are not in a state of vibration. ठीक है. जो भी कोहेसिव फोर्स इन मॉलिक्यूल्स को बाउंड करता है उसी का नाम तो विस्कोसिटी है. ठीक है. अच्छा, इसके साथ इसका जो इफ यू लाइक टू मेक एन एनालॉजी कि टेम्परेचर के साथ जैसा वाइब्रेट हो रहा है, विस्कोसिटी में जो फैक्टर है इट डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर. यहाँ पर भी डिक्रीज होता है. यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल डिसोसिएट, लेकिन दे प्रोवाइड इनिशियल रेजिस्टेंस. लेकिन यहाँ पे देर इज नो इनिशियल रेजिस्टेंस एट ऑल, और हैड इट बीन इनिशियल रेजिस्टेंस बहुत कम है. So it is inversely proportional to temperature. जैसे जैसे तुम लिक्विड्स के केस में मैं बोल रहा हूँ, लिक्विड्स के केस में जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका विस्कोसिटी विल गो डाउन. राइट. तो ये जो इलास्टिसिटी है दैट इज गिविंग इट द वाइब्रेशन दैट इज कॉजिंग द एटम्स टू प्रेजेंट बाउंड टू ईच अदर. ये एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि एकदम एग्जिस्ट नहीं करता है, बट रेंज इज वेरी स्लो. देयर इज अ मीन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम जो कि ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, हम लोग टेम्परेचर दें कि ना दें. और ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग यहाँ पे नहीं है. वी नीड टू गिव सम एक्सटर्नल फोर्स टू कॉज द बाउंडिंग टू ब्रेक. लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत नहीं है. दे आर ऑलरेडी themselves अपने आप ही the breakup. ठीक है. सो इलास्टिसिटी although is present, it doesn't last long. भाग जाता है. That is why it's called fugitive elasticity. Okay, clear? Now, what is the internal friction? Internal friction हम लोग क्यों बोल रहे हैं? इंटरनल फ्रिक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि लिक्विड्स में अगर आप कंसिडर करें तो एज आई हैव टोल्ड यू देयर आर डिफरेंट लेयर्स. मान लो देयर इज अ लेयर एट द टॉप. ये एक लेयर है. ठीक है. उसके बीच देयर इज वन मोर लेयर. ये एक लेयर है और इसके नीचे ये three layers, 1, 2 and 3. पहला लेयर is moving with the velocity which is more than this one. Oh, which is okay. It's more than this one. Whereas this is less than this one. Chronologically, velocity gradient तुम लोगों ने देखा होगा. कैसे हम लोग लिख सकते हैं velocity gradient को ऐसे. This is how we can write. There is a velocity gradient dv by dx. So velocity बढ़ रहा है, मतलब इसका
वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये बीच वाला जो है दैट इज हैविंग द मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर u वेलोसिटी है तो बीच वाला होगा u मैक्स। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट एक एक्सट्रीम एंड से यहाँ तक अगर हम वेलोसिटी ड्रॉ करें तो इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी द वेलोसिटी, दिस विल बी dv by dx, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट होने के कारण क्या होता है, मेरा जो ऊपर वाला लेयर है उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, नीचे वाले लेयर से ज़्यादा होगा, तो एक पॉजिटिव कर रहा है। सो इवन इफ इट इज़ मोर, नीचे वाला लेयर क्या कोशिश करेगा कि उसको उसकी वेलोसिटी कम करने की, सो इट विल ट्राई टू रिटार्ड इट, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि 1, 2 and 3, ये बीच वाला जो वेलोसिटी है, नीचे वाला क्या करेगा कि इसको रिटार्ड करेगा, रिटार्ड, इसका एक्सेलरेशन कम करेगा, इससे वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाला है ये क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा, ठीक है। दैट इज वाई द स्लोप इज लाइक दिस। ऊपर वाला लेयर चाह रहा है कि नीचे वाला लेयर मेरे जैसा हो जाए, और नीचे वाला लेयर चाह रहा है कि ऊपर वाला लेयर मेरे जैसा हो जाए। सो वन इज रिटार्डिंग द वेलोसिटी एंड वन इज एक्सेलरेटिंग द वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस प्रोसेस लीड्स टू द इंटरनल फ्रिक्शन। तो इसी को भी लिक्विड्स के केस में दिस इज हाउ द वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड, इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। ठीक है, हो गया। दूसरा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग विस्कोसिटी हो गया। अच्छा, गैसेस के केस में, राइट, इन द केस ऑफ गैसेस the velocity, the viscosity can be understood by something called a momentum transport. Momentum mass into velocity, ठीक है। So it is always a transport of momentum. इसीलिए although टेम्परेचर के साथ लिक्विड की वेलोसिटी घट जाती है, लेकिन इन द केस ऑफ गैसेस टेम्परेचर कॉजेस इंक्रीज इन वेलोसिटी। Of gas, ठीक है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दूसरा है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो दिस इज द रिलेशनशिप व्हिच डिस्क्राइब्स दैट द वेलोसिटी, द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, यहाँ पे L दे देता हूँ, द लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, whereas गैस के केस में these can be written in the form
is how it is written. Check it once. Yes. Right. In the case of gas, इसलिए मैंने G लिखा है. नहीं नहीं ये ऐसा है. ठीक है. That's it. टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा. इसको बोलते हैं सदरलैंड्स इक्वेशन. Sutherland's equation. Okay? So